Welcome to this webinar on understanding tips about 12th class board exams on science stream. Okay, I must congratulate first of all the participants. Why? Because of three reasons. That you are actually aware about yourself and you really care about your own performance, and you don't just care about your performance, you also take steps to improve your performance. You must be preparing very well for your 12th class boards. Okay, and certainly recent announcement which has happened today, this will give you some relief. It will give you some more time. Okay, but at the same time, don't stress yourself, but keep preparing for your 12th class board. So we have with us some of the engineering students of DTU. Uh, so these are the students who really understand that they have something that they can share with others. And certainly they in when I was chatting with them, they said that uh, because we also got this kind of help from others, so we just thought that it is time for us to actually pay it back. And this is really a very noble thought, because these are the things which people do not understand, not at least in their student life. Okay, later in life, many times people understand, many times they don't. But having this kind of thought, having this kind of conviction that yes, you have something and you want to share it, and you actually share it, this is something really noble. And this is something for which I must congratulate the professor who has actually taken the initiative to bring on all the students so that they can share their inputs. So let me introduce myself. I'm a professor at Delhi School of Business. I'm an alumnus of Indian Institute of Technology, BHU, IIM Indore, and FMS Delhi University. So today we will share, our experts will share their tips on chemistry, mathematics, physics, and biology. Okay, as you all are aware that all of them are doing engineering from Delhi Technological University. Okay, so now the further session will be coordinated by Professor N. Gupta. Thank you, Professor Gupta. Hello, students. We are Team Delhi Technological University, which was previously known by the name Delhi College of Engineering. I am Professor N. Gupta, along with top rankers of JEE and also DTU students who scored above 90% in boards. Students, we are all here for a social cause. And for this event, all of us have put in many days of hard work and time. These students are undergoing their BTech final semester examination. Still, these students agreed to be a part of such forum where they can share their experience free of cost. Mind it, if they went to coaching institutes, they can mint money like anything for say 1 hour session or so. But I must praise these students that they have some kind of urge to do social work at such an early stage. How many of us actually do the social work? And these students really agreed to help 12th science students who are stuck in this tough psychological stress due to the COVID-19 situation. I must suggest all of the participants to keep a notebook and pen handy with them to note the important tips. Reason being, many times we skip these tips and later on we regret that these students have shared the tips but we just miss out on them. So that's all from my side. There will be 4 sessions in chemistry, maths, physics, and bio. Two students will be sharing their tips and experiences. So we will be starting with chemistry. Shruti and Riddhim both are top rankers of DTU and both have secured above 90% in boards. They will be sharing their experiences in chemistry. So over to them. Okay, so good evening to all. I'm Shruti, currently in first year of my BTech in Delhi Technological University. I scored 94.8% in my CBSE board exams in 2020 and my marks in chemistry was 95. Good evening, everyone. I am Ridim Sehgal, and I am studying in DTU. I scored 94.6% in my class 12 boards.
and I will be speaking for the subject chemistry along with Shruti, and we both will try to guide you on how to score above 90 plus in your board exams. So to begin with, first we'll be sharing a quick glimpse of the syllabus for academic year 2020 to 2021 as there has been slight change in the syllabus. So this is the revised syllabus of that all we know that part on the top left is the physical chemistry. This is inorganic chemistry, and this is your this is inorganic chemistry, and this is your organic chemistry. So first of all, Shruti will like you to guide on physical chemistry. Over to you, Shruti. Yeah, so before going to the physical chemistry part, read NCRT of every chapter thoroughly and try to make notes side by side while reading it. Also keep marking the important parts. NCRT, if read thoroughly, will help you in solving all the reasoning questions asked in boards, plus the 5 markers in Chem, which are divided into parts. They can be tricky at times if one does not go through NCRT properly. Yeah. So next we have inorganic chemistry. It includes the 3-4 chapters which we all consider very lengthy. That is P block, DF block, and coordination compounds and metallurgy. So metallurgy has been removed actually. Yeah. So actually inorganic chemistry all of us do find really boring. But the thing with inorganic chemistry is that if you read it with concentration to all the NCRT chapters and try and make good notes out of it, you definitely will be able to remember the things, and you also need to practice all the equations, and that to balance the equations, because the paper will definitely ask you the equations in the exam. So you need to be thorough with all the equations, and also make good notes and practice lot of logical questions from inorganic, and do not miss reading NCRT. We repeat, of any chapter, and inorganic especially, because P block itself is almost 40-page chapter. So you need to read it thoroughly once, twice, thrice, as much as you can, and make good notes out of it, because at the end when your papers will be nearing, you will not be able to read your theory chapters again and again, and those notes are going to help you a lot. Yeah. So next we have organic, and over to you. Rhythm, just to sorry for interruption. Yes, sir. I just want to suggest to all the participants that you keep your notebook with you. Okay, right, take a pen, and don't worry. Okay, our participants, our experts will speak in Hindi as well as English. Okay, so that everyone can understand easily, and these things remain clear. ठीक है, Yeah. क्योंकि हिंदी में थोड़ा और अच्छे से समझ में आती है चीज. Yes, sir. Okay. बिल्कुल. Yes, sir. So in NCRT सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करना है, बी इट द बैक एक्सरसाइजेज और द एग्जांपल्स और द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको सर्कल कर लो या मार्क करके रख लो, सो दैट इट कैन बी प्रैक्टिस सेवरल टाइम्स and you become confident with those type of questions if it appears in the examination. If I talk about the physical chemistry part, there are mainly 5 chapters in physical chemistry. A good grasp on the formulas from all the 5 chapters and then solve a lot of numericals so that you can quickly get the procedure on your mind on how to go about it when it actually pops in the examination. All the important graphs in these chapters must be known to you because the very short answer questions will be made out of them. For organic, a lot of practice is required of different types of questions. You need to be thorough with each and every concept in organic, otherwise it's difficult to solve various questions as it doesn't have any fixed or repetitive pattern of questions. Organic mein there are mainly 20 name reactions which need to be in your head, as 1 or 2 name reactions do come up as it is from there only and nowhere else. Also try making flowcharts for the conversion so that it becomes easier to reach the final product, and the distinguishing tests also form a major part of the questions asked. जैसे questions पूछते हैं कि how will you differentiate between acetaldehyde and benzaldehyde,
So we do that through iodoform test. So you need to write iodoform test and then the chemical equations also for them, that how whether it's showing a color change or not, or what, however it's being done. So Shruti, just a moment. Shruti, participants are writing in chat ki Didi and Bhaiya please speak in Hindi. Reason being, at the school level, they are not so conversant with English. Okay. So maybe I'm not saying that their English is poor, but they are more, you can say, more relatable in Hindi. So you can switch to Definitely. Hindi and English. Okay. yeah, yes, ma'am. So that's what I said. I repeat, for organic chemistry, you need to solve various questions. बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि एक फिक्स या कोई रेपिटेटिव पैटर्न नहीं होता है. एंड मेनली 20 नेम रिएक्शंस हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए, बिकॉज वो एज इट इज पूछे जाते हैं एग्जाम में. एंड फॉर दी कन्वर्जन्स आई रेकमेंड कि फ्लो चार्ट्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ और उनको देखते जाओ. मतलब हमेशा देखते रहना है उसको. जब रात को सोने से पहले एक बार देख लिया, सुबह उठ के देख लिया, सो दैट इट गेट्स फिक्स्ड इन योर माइंड, आपके दिमाग में वो बैठ जाए. सो दैट्स ऑल फॉर ऑर्गेनिक. ये याद रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेटेज सबसे ज्यादा होगी पेपर में, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑर्गेनिक को सबसे पहले फिनिश करके रखो, बिकॉज ऑर्गेनिक अगर क्लियर रहेगी तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करने का. बिकॉज द थिंग इज ऑर्गेनिक का काफी ज्यादा वेटेज भी रहता है एंड ऑर्गेनिक आगे दिक्कत. सो नेक्स्ट अब एक ही लास्ट चैप्टर है हमारा जो बचा हुआ है, जिसको बहुत से लोग छोड़ देते हैं. मतलब मैं भी जानता हूँ कई लोगों को जिन्होंने छोड़ दिया था और वहां पे लूज होते हैं मार्क्स. वो है बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. तो अभी आई गेस कट सिलेबस से, बट इसमें ये है कि ये चैप्टर इज एक्सट्रीमली स्कोरिंग एंड अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, और ये चैप्टर इज एक्सट्रीमली इजी टू, बस कुछ चीजें याद करने की बात है. अच्छे से नोट्स बनाओ, एक बार ही ढंग से चैप्टर पढ़ोगे, नोट्स बना के रख लोगे, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा गारंटीड. ये जो 2 टेबल्स हैं, स्पेशली अमीनो एसिड्स, एक एक नहीं रटे होने चाहिए. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है. ये विटामिन वाला पक्का याद रहना चाहिए एंड अमीनो एसिड्स वाला कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं. बट इनको भी हमेशा अच्छे से याद करके रखो. जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार ही उनके स्ट्रक्चर्स बनाओ, बिकॉज वो जो उसमें भी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं आपके डिफरेंट शुगर्स के, उनको ढंग से प्रैक्टिस करो. आपके एंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, 4 टाइप्स के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये सब, वो सब के रीजनिंग्स पढ़ो. ये सब रीजनिंग्स काफी आएंगे 1 और 2 मार्कर्स में. एंड सो मेनली गाइड. अब देखो पेपर टाइम आने वाला, भी पेपर हमारा पोस्टपोन हो गया है, बट एंड जब टाइम आएगा पेपर के बेसिकली 10 दिन 15 दिन 20 दिन या 1 महीना पहले से, एंड ये इनफैक्ट हर सब्जेक्ट में यही चलेगा कि 1 महीना पहले से तो एटलीस्ट what you should practice is sample paper solving a lot. Like previous year paper solve करो, random sample paper नहीं उठाओ, previous year करो जितना कर सकते हो. because previous year में ये होगा कि you will know कि मेरे को पेपर में क्या मिलने वाला है एंड मेरे को क्या एक्सपेक्ट करना है. क्योंकि मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रीवियस ईयर करने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. आप कोई भी पेपर करोगे अपने, मतलब आगे जाके भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे कोई भी, तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता चलता है कि मेरे को एक्सपेक्ट क्या करना है पेपर में. सो ये 2 बुक्स हैं, श्रुति यूज्ड ओसवाल बुक्स पब्लिकेशन की, ये जो 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर है, मैंने खुद अरिहंत की यूज करी थी. सो ये 2 बुक्स काफी सही हैं, दोनों को बस टाइप अलग है. इसमें क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसमें चैप्टर वाइज फॉर्मेट में दिया हुआ है. हम दोनों की तरफ से हम ये 2 बुक्स रिकमेंड करेंगे. अपने आप देख सकते हो, बट प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करना, दैट विल हेल्प यू लॉट. एंड ऑल्सो श्रुति प्लीज एक्सप्लेन द पेपर पैटर्न ऑल्सो, थोड़ा बहुत गाइड करते. या सो मेनली जो प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं उनका मेन एम यही होना चाहिए कि थोड़ा पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है. हमारे ही टाइम से हुआ था पेपर पैटर्न में चेंज, तो इसलिए ट्राई करना कि वही चेंज पेपर पैटर्न्स के ही सॉल्व करो पेपर्स, सो दैट आपका वो टाइम मैनेज हो पाए. एंड ट्राई कि जो 3 आवर्स का पेपर है उसको मेनली मिनिमम लाइक 15 मिनट्स या 20 मिनट्स पहले ख़त्म हो जाए वो, सो दैट यू कैन रिवाइज द पेपर. उससे फिर आपका टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख लेते हो, प्लस आपका एक वो स्पीड भी बढ़ता है एंड इट इंक्रीजेस योर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो.
जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है उस पर यही है कि जो भी आपको क्वेश्चंस पहले आते हैं वो ही करने चाहिए सबसे पहले। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन उठाना है या ऐसा कुछ, बट जो जो जिस सेक्शन के क्वेश्चंस आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है मुझसे, उनको पहले ख़त्म कर दो, सो दैट वो एक टेंशन आपके दिमाग से चला जाए। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि एक ही सेक्शन के क्वेश्चंस पहले सारे करने हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है। ये नहीं कि सेक्शन ए का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किया, फिर सेक्शन बी पे चले गए, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन कर लिया, ऐसे नहीं करना है। एक ही सेक्शन के क्वेश्चन होने चाहिए इन अ सीरियल ऑर्डर, सो दैट वो एग्जामिनर को भी ईजी होता है देखने के लिए एंड इवेलुएट करने के लिए। एंड एक इम्पॉर्टेंट टिप ये कि लास्ट वीक ऑफ एग्जाम में डोंट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक। कोई न्यू टॉपिक मत शुरू करना जो पहले कभी देखा नहीं, छुआ नहीं, कुछ नहीं किया, उसको पहले नहीं उठाना। एंड जो ऑलरेडी आपको आता है उस पर एक ग्रास्प करने की कोशिश करो एंड एक पर्टिकुलर सेक्शन से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, सो दैट वही बात कि आपका ही कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। ये नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसको पहले लेकर बैठ गए, फिर वो नहीं हुआ एंड देन पूरा पेपर ही खराब हो जाए, तो वो मत करना। एंड ऑल्सो डोंट ट्राई एंड लीव एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस। किसी सिलेबस का कुछ मत छोड़ो, ऑलरेडी सिलेबस में काफ़ी कट है, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द प्रेपरेशन, ऑल्सो पोस्टपोन हुए हैं एग्जाम, बट एग्जाम्स तो होंगे ही 12th के, तो डोंट लीव एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस। एंड द बिकॉज बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी अनप्रिडिक्टेबल पोर्शन से भी क्वेश्चंस आ जाए एंड हमारा टारगेट 90 अबव है, तो इसलिए इट्स बेटर कि हम केयरलेसनेस की वजह से फ्री मार्क्स ना छोड़ दें हमारे। सो इट विल बी बेटर कि कोई पार्ट ना छोड़ा जाए सिलेबस का, एंड दैट विल हेल्प यू इन बूस्टिंग योर स्कोर ऑल्सो। Yeah, so one point that I would like to add is that कि लास्ट का जो टाइम होगा ना, बेसिकली पेपर में हो सकता है तुमको 3-4 दिन की छुट्टी मिले या 2 दिन की मिले, 1 दिन की मिले, उससे पहले जब उसको मत काउंट करना। उसके अलावा जो पहले से तुम्हारा टाइम होगा 15-20 दिन का, जब तुम पेपर सॉल्व करने बैठोगे तो अपनी एक पेपर लिखने की स्ट्रैटेजी बनाओ कि तुम पहले कैसे सॉल्व करोगे। कि किसी को लगता है कि मैं पेपर इन ऑर्डर ही सॉल्व करूँ, 1 2 3 5 मार्क्स। किसी को लगता है, मैंने खुद क्या किया था, 1 मार्कर्स पहले कर लिए थे, 20 MCQ और जो 20 1 मार्कर होते हैं बेसिकली, उसके बाद 5 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, मैंने ऐसे किया था। और ये इस पैटर्न में पेपर सॉल्व करने की एक प्रैक्टिस बनाओ, क्योंकि जब तुम एक पैटर्न में सॉल्व करोगे ना, तुम्हारी स्पीड बनेगी। और पेपर लिखने की आदत जरूर बनाना। अभी मैंने तो मेरे टाइम पे तो ऑफलाइन था, तो मैं तो स्कूल जा जाके 10 पेपर दे आता था, बट अभी तो तुम लोग ऑनलाइन हो, एंड ऑनलाइन में हमको पता ही है कि हमारे लिखने की आदत रिलेटिवली काफी छूटी हुई है। तो पेपर लिखने की प्रैक्टिस करो। ये ना हो कि वहां जाके तुमको दिमाग में आंसर चल रहा है बट तुम्हारा हाथ धीरे चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको टाइम ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और केमिस्ट्री, ट्रस्ट मी, तुम्हारा सबसे शॉर्टेस्ट पेपर होगा PCMB में, 100% गारंटी है। क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर अगर तुमको आता है ना, मतलब आता हो, कितना भी आता हो, 2 hour 20 मिनट से 2.5 घंटे के बीच में खत्म हो जाएगा। इन 20-25-30 मिनट्स तुम आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो हमेशा अपने पेपर लिखने की तो आदत डालो तुम लोग को, तो स्पेशली जो अभी पेपर देने वाला है, एंड अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ पेपर अटेम्प्टिंग की। एंड एंड ऑफ द डे डरना मत कि बोर्ड्स में कैसे होगा। कि मतलब ठीक है, 12th के बोर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एवरीवन नोज, बट स्टिल अपने हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क जरूर अप्लाई करना। जैसे मैंने कहा ना कि हार्डवर्क तो तुम कर रहे हो, हर चीज तुमने पढ़ ली, बट अगर तुमने पेपर लिखने की प्रैक्टिस नहीं की, सीधा तुम एंड में जाकर पेपर लिखने की कोशिश करो, तो वो तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी। तो combine hard work with smart work and definitely you'll succeed. We are sure of that. So thank you, and we would like to receive any questions if you have. तो हम ना क्वेश्चंस लास्ट में करेंगे, Okay sir. ठीक है? क्योंकि Sure. लास्ट में ना जब खत्म हो रहा होगा सेशन, उस टाइम पे हम चैट को इनेबल कर देंगे और उस टाइम पे फिर लोग अपना चैट में लिख सकते All right sir. हैं, ठीक है? Okay. I would now invite maths group to start. Utkarsh and Tushar. Both are D2 rankers and they have scored above 90% in boards. Hello everyone, this is Utkarsh from Delhi Technological University, currently doing my BTech, and I am in my first year. So I have secured 96.75% and my marks in math were 100.
I am here to guide you and give some tips about maths. And I have my colleague Tushar. So over to Tushar. He will give you his introduction. Hello, I'm Tushar, and I scored 94 marks in maths. So, me and Utkarsh will give you tips regarding the maths board exam. Okay, Utkarsh? just one moment, please speak in Hindi. This is continuing request from participants, please. Okay. हाँ जी. So the first tip which I would like to give about maths is कि तुम लोग अपना प्रेजेंटेशन पे ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि प्रेजेंटेशन के भले ही कुछ मार्क्स ना हो और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में लगता है कि बहुत ही लॉजिकल है तो शायद हम लोग को प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बट प्लीज़ आराम से लिखना पेपर और बहुत ज़रूरी है प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। एंड ये बात ज़रूर याद रखना कि तुम्हारा काम नीट एंड क्लीन हो, बहुत अच्छे से करा हो, अवॉइड कटिंग, कोई भी तरीके की कटिंग तुम्हारी ना हो, एनी सॉर्ट ऑफ क्लटरिंग, कोई भी ऐसा काम ना करना कि 3-3 क्वेश्चन एक साथ कर दिए और कोई भी गलती उसमें ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्लटरिंग और इश्यूज होंगे उतना ही तुमको दिक्कत होएगा और जो एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक करेगा उसके लिए भी उतना इश्यूज होते हैं। तो अगर आप अपने एग्जामिनर को सारी फैसिलिटीज दोगे तो बदले में आपको भी मार्क्स उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। थर्ड टिप विच आई वुड लाइक टू से अबाउट प्रेजेंटेशन इज कि अपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो प्लीज नंबरिंग और इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना कि जो पेपर में लिखा हुआ है नंबर, क्वेश्चन नंबर, उसी के हिसाब से करो। कोई भी ऐसी चीज़ ना करना कि तुमने क्वेश्चन नंबर ही बदल दिया कि 2 का बी दिया और आपने 2 का सी लिख दिया वहाँ पे। इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान देना, क्योंकि स्ट्रिक्ट टीचर होएगा तो शायद आपको मार्क्स नहीं देगा। तो मेक श्योर जो नंबरिंग बुक क्वेश्चन पेपर में है वही फॉलो करना। अगर उसमें 2 का सी है तो 2 का सी लिखना, वरना अपने आप से कोई नया पार्ट ना बना देना। एक टिप मेरी तरफ से ये रहेगी कि अगर हो सके तो प्लीज़ जिस ऑर्डर में पेपर है उसी ऑर्डर में करना, लाइक क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 उनके दोनों पार्ट्स वैसे करना। ट्राई करो एटलीस्ट ऐसा करने की, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हो पाएगा तो एटलीस्ट इस चीज़ का तो ज़रूर ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन के सारे पार्ट एक साथ ही हों। ये ना हो कि क्वेश्चन 2 का पार्ट आपने एक पेज पे किया है, फिर आप क्वेश्चन 2 का बी पार्ट किसी दूसरे पेज पे कर रहे हो, सी पार्ट डी कॉपी में, तो ये चीज़ काफ़ी इरिटेटिंग होती है एग्जामिनर के लिए। सो अगर हो सके तो सारे क्वेश्चन एक साथ ही करना, और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन के सारे पार्ट तो एक साथ ही करो। थर्ड थिंग, ये चीज़ ध्यान रखना कि आप अपने ग्राफ्स और कंटिन्यूएशन लीफलेट्स यानी कि बी कॉपी, सी कॉपी या बी पेज व्हाटएवर जो भी लोगे उसको आप सही से लेबल करो और सही से उसको अपना नाम, रोल नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है वो आप खुद से लिखो उस पे, क्योंकि इन केस अगर वो अलग हो जाते हैं किसी मिस हैंडलिंग की वजह से तो कम से कम वो आपको इश्यूज तो ना हो आगे। और मेक श्योर कि आप अपनी हैंडराइटिंग लेजिबल रखो, इतनी नीट एंड क्लीन हो। इंग्लिश का पेपर नहीं है कि कम से कम आप उसमें राइटिंग बहुत फैंसी बना रहे हो, कर्सिव बना रहे हो, इतना रखो कि लेजिबल हो। ब्लू ब्लैक पेन का कॉम्बिनेशन यूज करना, उसके बाद तो कुछ सोचना नहीं कि आपको ग्रीन यूज कर लिया फॉर्मूला लिखने के लिए, ये सब चीजें आपको बहुत ट्रबल कॉज करेगा। नाउ ओवर टू तुषार विल एक्सप्लेन दिस। Okay, so maths is all about practice, as you know. जितनी तुम प्रैक्टिस करो उतनी ज़्यादा तुम्हें मैथ्स आएगा, राइट? और जैसे कुछ लोग मैंने देखे भी, कई लोग जो होते हैं वो काफ़ी सारी बुक्स के पीछे भागते हैं, जैसे आर डी शर्मा कर ली, सिंगेज कर ली, कोई और कर ली, ठीक है? वो नहीं करना, उससे तुम पैनिक होगे, मतलब पैनिक होगे या फिर तुम्हें मैस क्रिएट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, इससे अच्छा तुम कोई 1 या 2 बुक पकड़ो, उसको 2 से 3 बार सॉल्व करो। एंड नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है, तुम जितने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और तुम्हें पता लगता है कि बेसिकली क्वेश्चंस आते कैसे हैं। काफ़ी सारी बुक्स में होता है क्या कि अनावश्यक से क्वेश्चन दिए होते हैं जो रेलेवेंट नहीं होते एग्जाम से, जो कि कभी एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते। PYQ करोगे तो उससे तुम्हें आइडिया लग जाता है कि कैसा क्वेश्चन कितने मार्क्स का किस तरह से आता है। और जब तुम सॉल्विंग कर रहे हो तो किसी बुक से, उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि LMH मार्क कर ले करो साथ के साथ, इससे तुम्हें बाद में रिवीजन के टाइम में आसानी होगी। एंड
कुछ लोग होते हैं कि जैसे कोई चैप्टर उनको मुश्किल लगता है, से इंटीग्रेशन किसी को मुश्किल लगता है, वो पूरा इंटीग्रेशन छोड़ देते हैं। वो नहीं करना तुम्हें, तुम उसका कोई स्पेसिफिक टॉपिक, मतलब इंटीग्रेशन जो तुम्हें इजी वाला पार्ट लगता है एटलीस्ट वो करके चले जाओ, उससे तुम्हें 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, तुम वो कर लोगे। सो ओवर टू उत्कर्ष। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पास्ट के तुषार, क्वेश्चंस को आपको तुषार एक मिनट, हाँ तुषार एक मिनट, ये LMH जरा थोड़ा सा समझा दोगे इनको? यस सर, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट थिंग। जो मैंने लिखा है यहाँ पे कि आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस को करना चाहिए, और उनको करना ही नहीं, सिर्फ उसको एनालाइज भी करना है। सो बेसिकली उससे मेरा मतलब ये था कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उसके बाद आप उसको ढंग से एक बार एनालाइज करो कि उसमें किस चैप्टर से किस टॉपिक से आ रहा है। बिकॉज मैथ्स में सिलेबस बहुत वाइड होता है, लेकिन आप सारा चैप्टर सब कुछ नहीं करके जा सकते हो, स्पेशली तब जब आपने पूरे साल मेहनत नहीं करी हो। तो आप इतनी अपनी सावधानी बरतिएगा कि आपको इतना याद हो कि इस चैप्टर से ये टॉपिक तो फॉर श्योर करना ही है। तो जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंटीग्रेशन जैसे टॉपिक से आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया, पार्शियल फ्रैक्शंस हो गया, कुछ स्पेशल फॉर्म्स होती है, तो वो सब जरूर से करना है। तो ये सब चीजें आपको जब पास्ट ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे तो आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा कि आपको पूरी बुक करने की जरूरत नहीं है, 6-7 एक्सरसाइज भी करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ चैप्टर्स की कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर लो, लाइक जैसे कि आपका मैट्रिसेस में मार्टिन रूल या क्रेमर्स रूल पे क्वेश्चन आता है, तो उसकी बस एक ही एक्सरसाइज है, वो 6 मार्क्स का आता है। तो ये सब चीजें बहुत ही इजी हो जाती हैं। नेक्स्ट थिंग जो मैं तुषार और मैंने डिसाइड करी थी LMH लेबल करने के लिए, वो ये थी कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो उनको LMH से लेबल करो, लाइक लो, मीडियम, हार्ड, ताकि जब आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करते हो तो आपको तो सारी क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए, सारे एग्जांपल सॉल्व करने चाहिए, जो भी बुक आप फॉलो करो, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि लो क्वेश्चन कौन सा था, कि इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा था, तो उसको मीडियम कर लेना, और जो बिल्कुल ही नहीं समझ में आया था, जो आपको किसी और से हेल्प लेनी पड़ी थी, उनको हार्ड मार्क कर लेना H से। फिर जब आप सेकंड रिवीजन करो तो तब आप लो क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो जो आपके फर्स्ट टाइम में ही हो गए थे, आप मीडियम और हार्ड वाले का रिवीजन करो, और उसी वक्त आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो या शॉर्ट नोट वहीं पे लिख लेना क्वेश्चन में कि इसमें इस लाइक एक्स को साइन एक्स सब्स्टिट्यूट करना है, उसको इस क्वेश्चन में हमको ऐसे वर्क करना है, तो एक छोटा सा एल्गोरिथम वहीं पे लिख लेना जब सेकंड रिवीजन करो। और थर्ड रिवीजन जब बोर्ड के 1 हफ्ते पहले आप बुक सॉल्व करने बैठो तो सिर्फ हार्ड करो, और उसके बाद आप कोशिश करना कि सिर्फ हार्ड करने के बाद आप जितना भी आपका लो और मीडियम वाले थे, बस उनको एक बार रिव्यू कर लो कि कम से कम क्या था उसमें जरूरी और क्या ट्रिक लगनी थी। बाकी इतना इशू नहीं आएगा, अगर आपने 2 या 3 बार बुक सॉल्व कर ली होगी तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप मैथ्स के पेपर में ग्राफ, स्केचेस और ये सब चीजें बनाओगे तो आराम से आपको 100 मार्क्स मिल जाते हैं। हमारा एक क्वेश्चन आता है एरिया अंडर द कर्व से, सो अगर आप उसमें ग्राफ्स बनाते हो तो वो तो आपको देना ही पड़ता है। सो ये तो आप बनाओगे, प्रॉपर्ली लेबल करना चाहिए, स्केच कर देना, जो आपका एरिया शेडेड हो उसको आपका एरिया फाइंड करना हो। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी अगर आप ऐसा बना के आते हो फिगर, लाइक बेस थ्योरम का आता है, आप लिखते हो वहाँ पे लेट इवन बी द इवेंट ऑफ हैपनिंग दिस एंड दिस, ई टू बी द इवेंट ऑफ हैपनिंग दिस एंड दिस, तो वो काफी लंबा पैरा हो जाता है और उसको एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो उसके लिए एक काफी बर्डन होगा। तो अगर आप वो लिखने से पहले पैरा ये ऐसा एक डिसीजन ट्री बना देते हो जिसमें आपने E1, E2, E3 ये सब मेंशन कर रखा हो क्या हो रहा है, और उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटीज भी उनकी मेंशन कर रखी हो, तो उसको पता हो जाता है कि आपने उसका मेंशन किया, तो वो पैरा स्किप करके उसके बाद सीधे आप वहाँ पे आपको उस चीज के मार्क्स दे देता है, तो वो इजी हो जाता है। और आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन आता है, उसमें भी अगर आपका 6 मार्क्स का आएगा तो डायग्राम बना के रखना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लाइक उसमें आप बता देना रेडियस क्या है, कौन सा क्या चीज है, तो दैट थिंग वुड बी इजी फॉर यू अगर आप उसमें करते हो, कि आपका एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ जाएगा, वो रीडिंग वाले पार्ट में नहीं जाएगा। अक्सर लिखते वक्त एक गलती हो जाती है कि E1, E2 सब मिक्स हो गया, कभी आपने E2 को गलती से E1 लिख दिया या कोई स्टेटमेंट मिस कर दिया, तो वहाँ मार्क्स कट होने के चांस आपके खत्म हो जाते हैं। वो एग्जामिनर को पता होता है आपने लिखा है, तो वो शायद वो स्किप कर देता है। सो एक्ट स्मार्ट, वहाँ पे आप अपनी गलती अगर छुपा लेते हो तो आराम से आपका कवर अप हो जाएगा और ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट थिंग है कि आपको बहुत ही विजिलेंट होना चाहिए अपने रिवीजन के लिए। आपको अगर आपने साल भर इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस नहीं करी तो आप उसमें इतना भी नहीं
टाइम दे सकते एंड में कि सिर्फ इंटीग्रेशन ही करे जा रहे हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए कि 6 मार्क्स मैट्रिक्स के भी हैं और 6 मार्क्स आपका इंटीग्रेशन से भी है। तो आपको कुछ बोलने कुछ ऐसा करने की वो नहीं है कि दिक्कत कि आप सिर्फ इंटीग्रेशन ही करो, इंटीग्रेशन बहुत टफ है। नहीं, आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है, आप इजी टॉपिक्स करो, उसके बाद फिर छोड़ दो। आपको इंटीग्रेशन पूरा नहीं छोड़ना है, जैसा बताया था पास्ट ईयर क्वेश्चन से ऑब्जर्व करो क्या चीज़ है क्या नहीं, और उसके बाद आप देखने के बाद आगे बढ़ जाना। नाउ तुषार विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट 2 पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ पे जैसे सेकंड वर्ड लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली मेंशन फॉर्मूला एंड थ्योरम्स इन 6 मार्कर्स। 6 मार्क्स में क्वेश्चन क्या होता क्या है भी टीचर तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन एकदम प्रॉपर हो, मतलब फॉर्मूला थ्योरम वगैरह अच्छे से लिखे हैं, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ही होता है। 6 मार्कर्स को ट्राई करो थोड़ा लेंथी बनाओ, और फॉर्मूला और थ्योरम को मेंशन करके अच्छे से अंडरलाइन करो, या ब्लैक मार्क्स लिख सकते हो वो लिखो। एंड नेक्स्ट इज लीव 3 लाइंस आफ्टर एवरी क्वेश्चन। थोड़ा मैं हर क्वेश्चन के बीच में एक गैप देना भी बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि एक तो तुम्हारा पेपर काफी साफ सुथरा नीट एंड क्लीन दिखता है, एंड बाद में से अगर तुमसे कोई एक आधा पार्ट छूट गया या कोई पॉइंट ऐड करना रह गया तुम वो भी कर सकते हो, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। एंड एक चीज मैं और बताना चाहूंगा जो मैंने करी थी अपने टाइम पे, एक जैसे ऐप कॉल्ड एम्बाइब ऑन प्ले स्टोर, EMBIB, उससे उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग। मैं करता था वो, मतलब काफी अच्छा ऐप है वो। सो वो एक मेरी तरफ से पर्सनल सजेशन रहेगा आप लोगों को। सो मैथ्स के लिए एक चीज जरूर ध्यान रखना कि आप अपनी कॉपी में जितना हो सके कटिंग और क्लटरिंग अवॉइड करना। अगर 1 या 2 लाइन की गलती हुई है या कोई 1-2 स्टेप्स गलत हो गए तो ठीक है, उसको काट दो, बट अगर आपने पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दिया तो उसको काटने की जरूरत नहीं है, आप उस क्वेश्चन को फिर से कर देना, क्योंकि एग्जामिनर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपने जो भी क्वेश्चन किया होगा अगर वो कट नहीं है तो उसको चेक करना पड़ेगा। सो आप अगर 2 बार करते हो क्वेश्चन तो 2 बार करके आपको चेक करेगा। तो और जिसमें भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो मैक्सिमम मार्क्स ही जाते हैं। तो इन केस अगर आप दूसरी बार करते हो क्वेश्चन और दूसरी बार भी नहीं बनता है और कोई मिस्टेक हो जाती है तो कम से कम आपका फर्स्ट वाला बैकअप में रहेगा। सो आप ये चीज का ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन काटना नहीं है पूरी तरीके से, सिर्फ 1-2 लाइंस अगर गलत हुई है तो वही काटना बस। और डोंट बी शाई इन टेकिंग कंटिन्यूएशन लीफलेट्स, बिकॉज आप एग्जामिनेशन फीस देते हो बोर्ड को, सो आपको कोई भी उसमें जरा सी भी शर्म नहीं होनी चाहिए कि आपका जरा सा पेज बचा है उसी में हटा देते हैं। जितना मन करे आराम से लेके लिखो, और बिल्कुल लाइन वाइन छोड़ के साफ सुथरा काम करना। एंड लास्ट थिंग फॉर मैथ्स, बी फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड, रिलैक्स होके जाना, कोई भी मन में फालतू के सवाल मत रखना। सो मेक श्योर आप आराम से रिलैक्स्ड हो, आराम से सो के जाना, बिल्कुल दिमाग आपका शांत होना चाहिए। थैंक यू। So now, thank you, Utkarsh and Tushar. Now I would invite physics with Divya man. Yes, sir. Please speak your name. I just forgot it. Divya Me man. and Yarish. Divyam and Yarish. Yeah, Yarish. Yarish. Yes, Yarish. Both of them are experts. They are pursuing their BTech from DTU and they are both above 90%. So, is it? Okay. So welcome. Good evening, everyone. जिसने भी join किया आज की मीट, good evening.
So, मैं and Yarish, we are going to present our physics board preparations with you. So, I scored 97 in physics in class 12 board. And Yarish, how much did you score? 95. Yeah. So, moving on. So, during our time, हमारे time पे marks distribution जो होती थी physics में, this was somewhere like this. तो electrostatics के लिए 15 marks, magnetism and EMI, AC के लिए 16, EM waves and optics के लिए 17, nuclear physics के लिए 10, and electronics के लिए 12 होती थी. So looking at this, हमने क्या किया कि we have basically divided the syllabus and with marks distribution, and हमने syllabus को भी broadly 2 categories में divide करा है. One is numerical based and one is theory based. क्योंकि फिजिक्स में मोस्टली यही होता है कि या तो आपसे न्यूमेरिकल ज्यादा पूछते हैं या फिर आपसे एक कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक होता है जिसमें आपको बस रोट लर्निंग करनी है. तो what we came to know through our preparation is that electrostatics and current electricity is purely numerical based. तो बोर्ड्स में उससे आपको थ्योरी बहुत ही कम पूछते हैं, once in a blue moon कभी गलती से पूछ लेंगे, बट मोस्टली इससे हमें हमेशा न्यूमेरिकल्स ही आते हैं. सिमिलरली मैग्नेटिज्म में भी मोस्टली आपसे ये लोग वही पूछते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस. तो मैग्नेटिज्म में भी 2 पार्ट्स हैं, वन इज EMI एंड AC एंड वन इज मैग्नेटिज्म, प्योर मैग्नेटिज्म. तो प्योर मैग्नेटिज्म वाला पार्ट जो है वो बहुत कम पूछा जाता है, बट वो मोस्टली आपका थ्योरी बेस्ड होता है. whereas EMI and AC, it is much more frequent and this is purely numerical. So, and coming to EMI, EM waves and optics. So EM waves is a purely theory-based subject. इसमें आपसे कभी-कभी पूछ लेंगे regarding कोई ही numericals पूछेंगे, but most of the time आपसे ये लोग हमेशा ही theory based पूछते हैं. Theory भी किस पे, जो कि types of waves होती हैं, उनकी applications, उनके क्या होते हैं, हमारे एक्सरे फॉर एग्जांपल है, उसकी एप्लीकेशन क्या होंगी, एक्सरे की वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्सेट्रा. तो उसके लिए आपको वो लर्न करना पड़ेगा. सो इसमें आपको न्यूमेरिकल्स तो कम से कम ही पूछेंगे, मोस्टली आपसे EM वेव्स में थ्योरी पूछते हैं. बट ऑप्टिक्स हैज अ स्ट्रेंज ब्लेंड ऑफ थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स. ऑप्टिक्स में आपका थ्योरी बेस्ड जो होगा वो वेव नेचर ऑफ ऑप्टिक्स वाले में होगा. जो वेव नेचर ऑफ लाइट है उसके में आपसे मोस्टली वो थ्योरी पूछेंगे. बट जो फिर न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी के लेंस वाला पार्ट, उसमें प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड है. Coming to nuclear physics again is a diverse topic. So इसमें nuclear physics में आपका atoms nuclei वाला जो टॉपिक है उसमें आपका थ्योरी होगा, एंड उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट जो न्यूक्लियर हमारा न्यूक्लियस टॉपिक है उसमें आपको अपना थोड़ा न्यूक्लियर रिएक्शंस, व्हाट आर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं एंड सो ऑन, वो आपको थोड़ा थ्योरी बेस्ड तरह याद करना पड़ेगा. एज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सेमीकंडक्टर्स वाला चैप्टर है जिसमें कम्युनिकेशंस भी आती है. सो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बहुत मिनिमल थ्योरी है इसमें, बहुत मिनिमल न्यूमेरिकल्स सॉरी, बट इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है. So get used to that theory part. I used mostly Khan Academy to brush up my topics of electronics. So I suggest आप भी वो कर लो. Other than आप अपने teachers को भी refer कर सकते हो. So that was our topic-wise strategy. So main topic. अगर आपको don't like numericals much, so focus on theory. So, and we have successfully told you, I guess, what theory chapters are. So that's the point. 3 or 4 months before board, you don't have much like you have a lot of option to actually explore what you like and what you don't. But now because you I believe you have approximately 2 months left for board examinations, you don't have much say in what topics you like or not, because you have to prepare for everything. आपको सबके लिए prepare करना है. तो आपको अगर interest है numericals में, अगर नहीं है इंटरेस्ट न्यूमेरिकल्स में, तो आप थ्योरी पे फोकस करो. थ्योरी चैप्टर्स हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड EM वेव्स, ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म थोड़ी बहुत. सो आप उस पे फोकस करो. एंड न्यूमेरिकल्स के जो चैप्टर हैं आप उसके प्रीवियस ईयर देख लो, बस उसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली अगर आपको मगिंग अप करना अच्छा नहीं लगता, राइट,
फॉर एग्जाम्पल माई केस, मुझसे याद नहीं होती थी चीजें, तो आई फोकस्ड ऑन न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स। मैंने उसको अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया एंड एंड में जाके मैंने बस एक दो नोट्स बना के याद करे बहुत एक टाइम पे, लाइक एक ही हफ्ते में मैंने बहुत सारा थ्योरी याद किया था एंड आई वाज जस्ट एबल टू spit everything out on my paper. So that was the thing with this. So Yarish, if you want to add something on it. हाँ, तो वही जैसा दिव्यम ने कहा, अगर तुम्हें वो रटना पसंद नहीं है तो तुम न्यूमेरिकल चैप्टर्स पे भी फोकस कर सकते हो। न्यूमेरिकल चैप्टर्स मतलब न्यूमेरिकल ज़्यादा तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा न्यूमेरिकल अगर क्लियर है, मतलब तुम्हारा थ्योरी क्लियर है। और मोस्टली बोर्ड्स में ये भी होता है कि मतलब न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन से थ्योरी तुम्हारे उठा के दे देते हैं, तो तुम वो, अगर तुम्हारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हैं तो तुम वो आसानी से कर सकते हो। और तुम एनसीईआरटी अगर ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा। तुम एनसीईआरटी मतलब अगर तुम खोल के देख रहे हो तो उसमें केमिस्ट्री की जैसे नहीं है कि पूरी रीड करनी है, तुम बस ऊपर ऊपर देख लो और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मॉकआउट कर लो। और एनसीईआरटी में जो बीच के इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं और फिर जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर से कर लेना, अभी कर लेना। और ऐसे तो अभी तुम्हारा पोस्टपोन्ड हो गया है, तो एग्जाम के बीच में जो टाइम मिलता है तुम्हें, जैसे फिजिक्स के लिए अगर 4-5 दिन मिला तो उसमें एक बार वो सब क्वेश्चन जरूर से देख लेना। सेम तो नहीं आते हैं, लेकिन काइंड ऑफ तुम अगर देखो तो वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं रहते हैं। और जो थ्योरी के चैप्टर हैं उनके जो वो है एनसीईआरटी, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ना। और न्यूमेरिकल जैसे ऑप्टिक्स ये सब हो गया तो उसमें तो प्रूफ्स ये सब आते हैं, तो वो देख लेना। और प्रूफ्स तो जरूर, जो भी प्रूफ है वो पक्का से एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, और उसके डायग्राम्स, वेल लेवल डायग्राम्स, वो जरूर देख लेना। और बस नेक्स्ट स्लाइड। न्यूमेरिकल में एंड न्यूमेरिकल्स में एक और चीज बहुत ज्यादा, अगर आप न्यूमेरिकल्स पे फोकस कर रहे हो सो प्लीज फॉर्मूलेज को याद रखना। लाइक उसके लिए हम अलग से आपको टेक्निक बताएंगे कि फॉर्मूलेज याद कैसे रखते हैं, बिकॉज न्यूमेरिकल्स को बहुत इजी फंड है। इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स वाले राउट से जा रहे हो तो आपको फॉर्मूलेज याद करना मस्ट है। बट अगर आप थ्योरी वाले राउट पे जा रहे हो सो यू कैन स्टिल फ्रेम योर क्वेश्चन आंसर इन सच वे कि आपका नॉलेज भी पता लग जाए टीचर को कि है। बिकॉज एंड ऑफ द डे थ्योरी, जो आप अगर थ्योरी राउट पे जाओगे सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, इट इज सब्जेक्टिव। बट अगर आप न्यूमेरिकल राउट पे जाओगे तो इट इज हाईली ऑब्जेक्टिव एंड आपको याद करना कंपल्सरी होगा। सो याद करने के लिए अब आपको थोड़ा हेल्प करेंगे बाय टेलिंग यू समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज हर चैप्टर के प्लीज नोट्स बनाओ। बिकॉज द थिंग इज दैट, देखो मैथ्स सी लगाओ, इसमें हर चैप्टर आपको रीड करने में एटलीस्ट 1 डे लगेगा, एटलीस्ट 1 डे लगेगा बस रीड करने में। अब दिस इज नॉट इंक्लूडिंग कि आप उसमें अच्छे से समझ रहे हो, आप उसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो, दिस इज नॉट इंक्लूडिंग दैट। तो नाउ थिंक देयर आर अप्रोक्सीमेटली 30 चैप्टर्स इन ईच सब्जेक्ट, राइट। सो आपको 1 मंथ लगेगा बस रीड करने में। सो इमेजिन बोर्ड से पहले अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, बोर्ड से पहले 1 महीना पहले या 2 महीना पहले आपने नोट्स नहीं बनाए, सो आपको स्पेंड करना पड़ेगा 30 डेज अप्रोक्सीमेटली सिर्फ चैप्टर को रीड करने में। सो दैट इज द लॉजिकल आंसर टू व्हाई यू शुड मेक नोट्स। Other than that, many studies have proven that making notes actually help you recall and revise things. तो आप एक बार आप खुद ये ट्राई करना कि try to learn a number, like rote learning ही करना। अगर आपको कोई नंबर दे उसकी, आपको वो नंबर, आप जो फोन नंबर होगा वो आप 2 घंटे या 3 घंटे में भूल जाओगे, राइट। बट अगर वो आप नंबर को एक बार लिख लोगे तो आप उस नंबर को अराउंड 1 दिन तक या 2-3 दिन तक भूलोगे। So this is an experiment which you can do as well. तो please make notes for each chapter. And notes कैसे बनाने, अब notes ये भी नहीं कि बहुत लोग ये करते हैं कि हाईलाइट ही करने लग जाते हैं, पूरी बुक को ही हाईलाइट कर देते हैं। नहीं, आप पढ़ो, जो कीवर्ड्स हैं उनको नोट डाउन करो, उनको बुक में ही नोट डाउन करो इटसेल्फ पहले, ठीक है। फिर उस कीवर्ड्स को लो और अपनी एक छोटी सी रजिस्टर बनाओ। फिर उन कीवर्ड्स को आप उस रजिस्टर में एक स्टोरी के फॉर्म में लिखो या फिर एक बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लिखो। एंड ये नहीं कि आप पूरी चैप्टर को ही फिर आप जॉट डाउन कर रहे हो बुक में, वो भी नहीं, सिर्फ मेन पॉइंट जिससे आपको पता लगे, जैसे जिस्ट ऑफ द चैप्टर। फॉर एग्जांपल एक पूरा पैराग्राफ है, तो उस पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप
पूरा एक्सप्लेन कर रहे होंगे स्टार्टिंग में लॉ क्या होता है एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप वो पूरा पैराग्राफ नहीं लिखोगे, आप बस ये लिखोगे कि द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेल्स अस अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, है ना। इससे आप थर्मोडायनामिक्स समझ गए इन 3 वर्ड्स। बल्कि सो ये है जिस्ट ऑफ द चैप्टर जो होता है, तो फिर जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ, दैट इज व्हाट नोट्स आर फॉर, ताकि आपको वो पैराग्राफ वापस ना पढ़ना पड़े, आप बस वो 3 वर्ड्स नहीं आप समझ जाओ कि हाँ हाँ ये था वो चैप्टर में। तो उसके लिए आप 2 स्टेजेस करो, पहले पूरा पढ़ो जो चैप्टर है अच्छे से, फिर उस चैप्टर को पढ़ते हुए आप नोट डाउन करो चैप्टर में बुक में ही कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कौन कौन से की वर्ड्स हैं, उसको नोट डाउन करो एंड देन रजिस्टर में उन चीजों को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो ताकि आप भी समझ पाओ जब आप वापस पढ़ रहे हो, राइट यरीश? तो मेरे ख्याल से तुमने भी यही किया था ना यरीश? हाँ, वो नोट्स तो बिल्कुल सही से बनाओ, और तुम नोट्स तो जैसे तुम छोटा छोटा बना लोगे तो तुम्हें वो टाइम भी अगर कम हो रिवीजन करने का बोर्ड्स देने के पहले, तो तुम कम टाइम में ज्यादा चीज तुम्हें वो नोट से मिल सकती है। एंड फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल्स तो प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल अगर न्यूमेरिकल्स बोर्ड्स तो बिल्कुल हो गए तो तुम्हारे वो जो लिखे हुए नोट्स हैं वो भी काम आ सकते हैं। चलो मूविंग ऑन टू बुक रिकमेंडेशन। सो बुक रिकमेंडेशंस में 4 बुक्स मस्ट है, व्हिच इज द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज योर बाइबल फॉर फिजिक्स। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता फिजिक्स में ऑनेस्टली। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो एच.सी. वर्मा पढ़ने लग जाते हैं, कुछ बच्चे तो पता नहीं रशियन ऑथर्स की भी बुक्स पढ़ने लगते हैं बोर्ड्स के लिए, तो वो सेंस नहीं बनाता। एनसीईआरटी सीबीएसई पेपर बना रहे, सीबीएसई कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन हाँ वो फायदा नहीं देगा। कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट बोर्ड्स के टाइम थोड़ा एनसीईआरटी की तरफ शिफ्ट हो जाओ। एग्जैक्टली, पहले एनसीईआरटी जो करना है ट्राई कर लो, लेकिन बोर्ड्स के टाइम एटलीस्ट सिर्फ एनसीईआरटी के लिए, हाँ एनसीईआरटी से ही आएगा जो आएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा और सिर्फ एनसीईआरटी से में छुपा रहेगा, उसी को तुम अच्छे से पढ़ लो, वो ज्यादा सही है रादर देन कि दूसरे बुक्स पे जा रहे हैं। और ट्राई करो कि मतलब रूटीन थोड़ा बनाने का ट्राई करो, कि ऐसा नहीं कि आज टिप्स लिए हैं तो कल पार्ट 1 खत्म कर देंगे, परसों पार्ट 2, मतलब रोज का टिप्स बनाओ कि आज ये 2 चैप्टर कर लेने हैं और इसको अच्छा से कर लेने हैं, इसके क्वेश्चंस प्लस इसका नोट्स बना लेने हैं, इनको रीड कर लेने हैं। ऐसा ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अदर देन दैट आप लोग प्रदीप की बुक आती है फंडामेंटल फिजिक्स, उसको भी बोर्ड्स के लिए ट्राई कर सकते हो। सो इसमें क्वेश्चन बैंक्स बहुत अच्छे होते हैं, थ्योरी भी एक्सप्लेन की होती है टू द पॉइंट। तो मैंने पर्सनली इससे किया था, यूरीश ने भी इससे किया था फिजिक्स और ये वाली। सो आप भी इससे नोट्स बना सकते हो अपने, ठीक है। ये हम बस अभी नोट्स के बारे में बात करें कि नोट्स किससे बनाने हैं। सो आई रेकमेंड दीज 2 बुक्स फॉर नोट मेकिंग। अभी यरीश आपको सबको ये भी बता रहे थे कि प्रॉपर स्टडी प्लान कैसे बनाना है, राइट? सो यरीश इफ यू वांट टू। तो बेसिकली वो यही बता रहा था कि ये नहीं होना चाहिए कि आज एक दिन जोश आया तो यार हमने 3-4 चैप्टर खत्म कर लिए एक दिन में, फिर जोश नहीं रहा तो हमने एक भी चैप्टर नहीं किया, राइट? वो आपको इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं उसको। इनकंसिस्टेंट जो प्रैक्टिस होगी वो दैट विल नेवर बेयर एनी फ्रूट। सो 2 चीजें आपकी बोर्ड्स टेस्ट करती हैं, दैट इज नॉलेज एंड कंसिस्टेंसी या फिर परसिवरेंस। अगर आपको ये 2 चीजें नहीं होंगी आप में, सो यू विल नेवर बी एबल टू स्कोर, ठीक है। सो ऑलवेज मेक श्योर that you're consistent with your preparation. So how can that come to fruition? तो ये बस आप तभी कर सकते हो जब आप अपना एक स्टडी प्लान बनाओ। अब ये स्टडी प्लान बनाए कैसे? So what I personally did was I had 3 hours each day for 3 subjects, just PCM. So 1 घंटा मैं हर दिन फिजिक्स को डिवोट करता था, only for boards, not talking about JEE, only for boards। आप अपना 1 घंटा at least डिवोट करो फिजिक्स पे। नाउ दैट इज अप टू यू कि आप कब वो डिवोट करोगे। सम पीपल लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग, कुछ लोगों को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को शाम को। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप कब पढ़ो, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इट इज नेसेसरी फॉर यू टू डिवोट एट लीस्ट 1 hour टू फिजिक्स एवरी डे। एंड ये नहीं होना चाहिए कि यार आज मेरे मामा की शादी है तो मैं 1 घंटा नहीं पढ़ पाऊंगा, या फिर कल आपके ताऊ की शादी आप नहीं पढ़ पाओ एंड ऑल, राइट? तो वो चीज इनकंसिस्टेंसी देगी, वो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज अगर आप कोई पार्टी में गए
आप वो एक घंटा नहीं दे पा रहे फिजिक्स को, सो नेक्स्ट डे आपको कॉम्पनसेट करना होगा 2 आवर्स के लिए, एंड मेक श्योर कि ये आदत ना बने कॉम्पनसेशन की, बिकॉज फिर वो प्रोक्रेस्टिनेशन भी बन सकती है, एंड प्रोक्रेस्टिनेशन इज नेवर गुड, राइट? तो एक रूल बना लो कि कहीं चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप 1 घंटा फिजिक्स को दोगे ही दोगे, राइट? है ना यरीश? I'm just coming in for a second just to inform all the participants that you can ask your questions at the end. Okay, at that time we will enable the chat and you can write your questions there. Yes, continue please. Yeah, so now coming to preparation strategy few months before the physics exam. So अब जैसे कि आपका boards postpone हो गया है, so this has given you much more time to prepare, right? तो बट ये चीज में देखना कि यार बोर्ड्स मिल गए हैं तो हम लोग अभी मजे करेंगे, हम लोग पोस्टपोन हो गए तो मजे करेंगे, राइट? क्योंकि अब देखो कि आपको टाइम मिल रहा है तो दूसरों को भी टाइम मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए, राइट? सो जो पहले कट ऑफ 95 पे जाती थी, अब वो नेचुरल है कि 98 पे जाएगी या फिर 97 पे जाएगी अगर आप बोर्ड्स को देख रहे हो। सो क्योंकि दूसरों को भी टाइम मिला है, सो आपका कंपटीशन भी बढ़ गया। सो आप ये चीज मत लो दिमाग में कि अब आप टाइम वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज यू कैन नॉट। क्योंकि आपसे भी आप टाइम वेस्ट करोगे तो कोई और बंदा उस टाइम में पढ़ रहा होगा, है ना, जिसकी वजह से आप पीछे रह जाओगे, वो बंदा उसको यूटिलाइज कर लेगा टाइम को। सो डू नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो टू वेस्ट। ये जो पोस्टपोन हुआ है, ठीक है, डू नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो टू वेस्ट एंड स्टडी एज मच एज यू कैन नाउ। सो नाउ कमिंग बैक कि प्रेपरेशन कैसे करो आप फिजिक्स के एग्जाम में। सो 1 महीने पहले नए टॉपिक मत उठाओ। जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं उठाने, जो आता है वही करो। सो आई रीइटरेट कि नए टॉपिक नहीं उठाने 1 महीने पहले। 1 महीने पहले जो आपका स्ट्रॉन्ग सूट है, हमने बात की थी न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी। सो अगर आपका न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग सूट है तो आप न्यूमेरिकल पे फोकस करो, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। एंड थ्योरी, ये भी नहीं फिर कि थ्योरी को आप टोटल ही गिव अप करो, नहीं, आप थ्योरी के प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आपका थ्योरी स्ट्रॉन्ग सूट है तो आप थ्योरी पे फोकस करो, बहुत अच्छे से फोकस करो, क्लास नोट्स देखो, अपने जो नोट्स बनाए थे वो रिवाइज करो, बट ये नहीं कि आप न्यूमेरिकल्स को गिव अप करो, नो। फिर आप जो पास्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स हैं उनको डेली सॉल्व करो। एंड अब आपको ये चीज करनी है 1 मंथ में कि आपका पहले जो 1 आवर था फिजिक्स का हर दिन डिवोट का, अब उस 1 आवर में आप एक और आवर ऐड करो, विच इज टू जो टेस्ट सॉल्विंग है उसके लिए, कि आप एक एनवायरनमेंट बनाओ अपने अराउंड कि उसमें आप टाइम बाउंड फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 4 मार्कर्स जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली जो 4 मार्कर्स या फिर 6 मार्कर्स होते थे हमारे, तो 6 मार्कर्स जो फिजिक्स के आएंगे क्वेश्चंस, उसमें आप लोग ट्राई करो कि यू डू इट अंडर 5 मिनट्स, ठीक है। तब जाके इफ यू एम फॉर 5 देन यू माइट बी एबल टू कंप्लीट इट विद इन 10 मिनट्स और 8 मिनट्स, राइट। तो आप टाइम बाउंड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो उस 1 महीना में। एंड फॉर दैट आप लोग अपने 1 आवर तो रखो कंसिस्टेंट, जो आप कर रहे थे फिजिक्स के लिए, बट उसमें आप 1 आवर ऐड कर दो। ये 1 महीना पहला करो। सो अब आते हैं हम लोग द 3 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन। सो दिस इज रिवाइज, रिकॉल एंड रिपीट। तो 1 महीना पहले आपको ये भी करना है। सो व्हाट इज दिस? तो आप कोई नई चीज तो पढ़ोगे नहीं, राइट? तो इसमें आप बस यही करोगे कि जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करोगे। फिर जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आप फिर अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप लोग रिकॉल करने का ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मूला था, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर फॉर्मूला है, राइट? तो जैसे कि कोई एनर्जी की बात करने लग गया तो यू ट्राई टू रिकॉल दैट फॉर्मूला कि अच्छा एनर्जी का फॉर्मूला था E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। फिर एनर्जी को कहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, वर्क से कर सकते हो रिलेट, राइट? तो वर्क का फॉर्मूला याद करना की ट्राई करो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है कभी वो स्टैग्नेट नहीं करेगा एंड यू आर ऑलवेज रेडी एट ऑल टाइम्स। तो आप ये भूलोगे में नहीं चीजें। तो रिवाइज, रिकॉल एंड रिपीट दैट प्रोसेस। नाउ वी कम टू सेल्फ इवैल्यूएशन। सो जो सेल्फ इवैल्यूएशन है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेस्ट देते रहो ताकि आपको पता लगे कि आपकी कमी कहाँ हो रही है एंड उसको आप ठीक कर सको उस कमी को। सो प्लीज डू सेल्फ इवैल्यूएशन एज वेल बिकॉज दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेस्ट देते रहो, सेल्फ इवैल्यूएट करते रहो, जो गलती हुई फिर वापस इस वाले स्टेप पे जाओ। जिससे आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, आप देखो कहाँ पे कमी आई, फिर वापस इस स्टेप पे हो, रिवाइज करो,
और रिविजन करके फिर से एक बार सेल्फ इवैल्यूएशन करो, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन till you're scoring at least 95 in physics, right? Now for self evaluation I recommend exam idea book जो होती है physics की, इसमें previous year के सारे questions होते हैं and आप इससे अपने सारे questions कर सकते हो. So this is a must, this book. And end of the day, relax, like boards hain, this is one of many tests life will throw at you, so relax करो, ज़्यादा उससे मत दो कि this is end all for your life, नहीं होता. Many more tests will come, many more tests will go, and end of the day जहाँ पे आपको होना होता है लाइफ में आप पहुंच ही जाते हो. So don't worry and give this very calmly, and best of luck. Thank of you, luck. Divyam and Tushar, for your very good tips. Reason being, physics is a dreadful subject. People are very feared about physics. So we will be switching over to biology. Mansi and Karthik will be sharing their biology tips. Even though they are doing engineering, but they have taken biology in their 12th and 11th. So they can start. Good evening, everyone. This side Mansi and Karthik from DTU. Today we are here to share our tips for biology board exam preparation. Mansi, please speak in Hindi. Try to. Okay. Many Okay, people ma'am. can understand that. Karthik, can you please start sharing the PPT? Okay, Karthik is now co-host. I think he went out. Hello sir, my name is Karthik and I study in DTU, and I took biology as a main subject and I scored 91.6 marks in CBSE. Let me share my screen. Is it visible? Yes. So me and Mansi will tell you tips about to prepare for biology exams for class 12. So let me tell you that biology is actually Karthik, just a moment. Again, sorry for interrupting. Please speak in Hindi. yes. Actually जो biology subject है, it's a very interesting subject. It tells us ये हमारी डे टू डेली लाइफ चीज़ों के बारे में बताता है कि लाइक कैसे चीज़ें काम करती है, क्या उसको छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम उसका यूज़ करते हैं चीज़ों को, कैसे वो काम करते हैं और हमें से कैसे टैकल करना है. So basically class 12th biology is pretty easy that we are just ये है कि एक एडवांस वर्जन है कि जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. जस्ट इसमें कुछ फ्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं जिसकी वजह से कि हाँ ये एक जस्ट ये डिफरेंशिएट कर देगा कि 10th और 12th के बायो से अलग है. So me and Mansi will tell you about biology board exams and tips related to it. So कि हम उसको कैसे टैकल करें और हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं. So yes, so the weightage is as follows. Basically in class 12 we have five unit divided. उसमें एक जेनेटिक एंड एवोल्यूशन जिसकी 18 मार्क्स का वेटेज है और ये 25% है. देन कम्स हमारा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये 14 मार्क्स है और इसकी 20% वेटेज है. Then it comes to biology and human welfare, 14 marks और इसकी 20% weightage है. The rest is biotech and reproduction, both comprises of 10 marks and biotech comprises of 10 marks and reproduction comprises of 14 marks. तो बेसिकली एक ओवरव्यू है कि हाँ कि हमारे पास ये सारे सब्जेक्ट्स है जिसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशंस दे आर काइंड ऑफ a little bit tricky but it's not difficult. इसमें जस्ट ये समझने की बात है कि हमें इसको कैसे देखना है कि लाइक उसमें हमने मेंडल की स्टडीज जो हमने 10th में की थी वही चीज सेम रिपीट हो गई है, बट इस टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आ गए हैं जैसे लैंगडाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड
रॉयल डिजीज, तो इसमें जेनेटिक्स में थोड़ी चीजें और ऐड हुई हैं। एंड सेम केस एंड सेम एवोल्यूशन में, कि एवोल्यूशन में वो सारी चीजें कॉमन थी, लाइक होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स हो गया, और फिर बाकी मेंडल मेंडल एंड ऑल। एंड इसमें एग्जांपल्स के तौर पे समझा रखा है कि हम कितने हम कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, और हम इसमें कैसी चीजें हम इसको धीरे धीरे समझ रहे हैं। सो द जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन इज ऑल अबाउट कि हम उसको कैसे कैसे समझे। बट इसका जस्ट बेसिक तरीका है कि हम इसको हम इसका फ्लो चार्ट्स बनाए, इसको मेमोराइज करें कि ये कैसे होगा। कि ये एक्चुअली इट्स अ वेरी, ये काफी ज्यादा सिंपल है। एंड एवोल्यूशन में आखिरी वाले पार्ट में भी काफी सारे मतलब एग्जांपल्स है कि जैसे कि ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए, तो उनकी कितनी ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ी है, ये और बाकी और एवोल्यूशन में एक वो भी पार्ट है जो हमने टेंथ में पढ़ा था, दैट वो होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। तो इसमें वही सेम चीज है, बट ये है कि लाइक ट्वेल्थ से हम बायोलॉजी, इसमें just और थोड़ी चीजें ऐड हो गई सो दैट कि एग्जांपल से बच्चे उसको और रिलेट करें। सो दैट्स व्हाई जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन हैव हेवी वेटेज, एंड फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें भी ज़्यादा है। सो स्टूडेंट शुड, आप लोगों को प्रोबेबली प्रेफर करना चाहिए कि जेनेटिक्स समझा जाए, ना कि उसको याद किया जाए, ना रटा मारा। जेनेटिक्स में सारी समझने की चीज़ें हैं, और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं जो कि काफ़ी फॉर्मूला कट होते हैं। देन कम्स आवर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स होता है फ्रॉम बोथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड एज वेल एज सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो इकोलॉजी, इट्स ऑल दिस बेसिकली जो कि हमने 10th में पढ़ा था, 10th 9th जिसमें पढ़ रहे थे वही है। और उसमें हर चीज मतलब रिपीट हो रही है, और एक कॉम्प्लेक्स वे में कि जो कि हर कोई इसको इजीली स्कोर कर सकता है। अगर हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट ही इतना इंटरेस्टिंग है कि इसमें मन लग जाता है कि हाँ, हमें इकोलॉजी में कि वी कैन डू समथिंग दैट। इसमें फ्लोरा फौना हो गया, इसमें फ्लोरा फौना एज वेल एज काफी कार्बन साइकिल, इसमें ये सब चीजें कि जस्ट हाँ, कि ये कि हमें इजीली स्कोर कर सकते हैं। कि अगर एक्चुअली एक्चुअली थिंग इज दैट इफ समवन इज फ्रेश टू स्टार्ट, अगर किसी को फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, दे शुड बी प्राइमरली फोकस ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इट्स very much scoring, and it's very simple, totally simple, that anyone can easily score in this marks. And it's very and and they are very short chapters, ये काफी short chapter है। इसमें ओजोन लेयर्स हो गए आपके, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श, इसमें ये सब चीजें इतने अच्छे से बताया कि लाइक हर बंदे का इसमें दिल लग जाएगा पढ़ने में। इस वजह से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सबको फ्रेश एज अ फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए। इट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर दैट। then then comes to our biology and human welfare. So I can say that the biology and human welfare, these are also a very simple subjects, which I guess if someone makes notes, then per chapter they can finish it within, कोई भी बंदे से नोट बनाए तो कोई भी इसका एक चैप्टर की जस्ट इसके नोट्स मैक्सिमम 3 पेजेस में कवर अप कर लेगा। ये काफी ज्यादा सिंपल है। इसमें ह्यूमन डिजीज के चैप्टर्स हैं, एंड क्रॉप से रिलेटेड है, एंड क्रॉप से रिलेटेड है कि हाउ आवर इकोनॉमी हैज बीन boosted with the help of crops and improved crop varieties, that the Norman Borlaug, or that Norman Borlaug, and one more scientist, that he changed our क्रॉपिंग सिस्टम। सो इसके बारे में वो है, और उसमें एक डिजीज का भी चैप्टर है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट टेल्स अस कि हाउ डज कैंसर वर्क्स, कैंसर थिंग्स वर्क्स, एंड हाउ एड्स चेंज आवर मेटाबॉलिज्म एंड एंटर्स आवर लाइफ, एंड हम उसको कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं। किसमें एवरीथिंग है कि लाइक वी लाइक हाउ बैड ड्रग्स एंड अल्कोहल फॉर आवर ह्यूमन। इसमें वो बायोलॉजी में एंड ह्यूमन वेलफेयर में इसमें इजिली कवर्ड अप है। ये काफी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, लाइक ecology and biology for human welfare. Then comes the part of reproduction, which comprises of 14 marks and 20% की हमारी इसकी weightage है। To be honest, reproduction is exact same as the thing that we have studied in our 10th and 9th class, which helps कि हाँ, हमें ये आता है, तो बस इसमें एक चीजें और ऐड कर दी हैं, टू मेक इट कॉम्प्लेक्स
कि हाँ ये 12th क्लास कि वी आर लाइक इन 12th क्लास दैट्स फाइन एंड सो और इसमें चैप्टर है एंड इसमें ये कि लाइक हाउ थिंग्स आर वर्किंग एंड व्हाट आर द आउटकम्स की कैसे वो एमटीपीज का मिसयूज हो रहा है एंड हाउ थिंग्स कि how we can use this and how we can say that कि हाँ कि कौन सी डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है तो रिप्रोडक्शन comprises of that part. Now comes very interesting part of biology, the biotechnology and its application. So the thing जो हम चीजें देख रहे हैं आसपास की लाइक हमें नई नई मेडिसिन मिल रही हैं, नए क्रॉप्स मिल रहे हैं, नए नए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, ये सब बेसिक्स है दिस बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि लाइक हाउ कि हमारा कि फॉर एग्जांपल कि एक टोबैको मोज़ाइक नाम का प्लांट होता है, उसकी काफी डिग्रेडेशन हो रही थी पुराने दिनों में, बट ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी हमने एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाया जो कि इसको प्रिवेंट करता है बाय विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. और हम कैसे जीन को हम कट कर सकते हैं ताकि हम उसके बेकार के पार्ट्स हम उसको एलिमिनेट करें और जो सिर्फ यूजफुल पार्ट्स हैं हम उसको यूज करें. It's a very interesting chapter. Like how can we separate a particular DNA, the DNA fingerprinting and all, so that we can even, and in fact the biotechnology is also used in catching criminals. Like हमने सुना है कि like the criminals को catch करते हैं and they work on DNA testing. So biotechnology comprises of all that. So from these 5 units, I will probably recommend that the very much scoring part is in the ecology as well as biology and human welfare. Then comes to the part of biotechnology, then biotechnology, then reproduction and genetic and evolution. But the thing is that we should, if someone starts fresh and doesn't know something, and he should start from ecology. That would probably be better, and it's a very easy and a broad way to understand the things. Next time, Mansi will take it. नाउ सिंस यू नो कि बायोलॉजी का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना सारा सिलेबस टाइम पर ख़त्म करें सो दैट आपको प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल सके. और ये तभी पॉसिबल होगा अगर आपने अपना स्टडी प्लान एक बहुत प्रॉपर शेड्यूल बनाया हो उसके लिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे से फेमिलियर हो. जैसे सेक्शन ए में 5 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें यूजुअली या तो 1 वर्ड होता है या फिर डेफिनेशन बेस्ड होते हैं. सेक्शन बी और सी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं एंड सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स वाले, लेकिन उसको भी पार्ट्स में डिवाइड किया होता है तो उसमें भी 1 वर्ड और डेफिनेशंस इंक्लूड हो जाती हैं. सो बेसिकली चीज़ ये है कि एनसीईआरटी में से जितना भी है एक एक लाइन में से क्वेश्चन उठाकर पूछा जा सकता है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एनसीईआरटी बायो की अच्छे से फेमिलियर हो. एंड ऑल्दो बोर्ड एग्जाम में चॉइसेस आती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो एक ही यूनिट में से होते हैं. सो ऐसा नहीं है कि आप कोई यूनिट स्किप कर सकते हैं या कोई यूनिट आसान है या मुश्किल है तो आप उसको छोड़ सकते हैं. ऐसा नहीं है, सारी यूनिट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्दो एक सिमिलर वेटेज होती है एवरी ईयर, लेकिन किसी भी यूनिट से कितनी भी वेटेज वेरी कर सकती है. ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्ट सेम ही रहती है. सो अगर आपको ज़्यादा मार्क्स के लिए एम करना है सो इट्स रिकमेंडेड कि आप हर एक यूनिट अच्छे से कर जाएं और सारा सिलेबस अच्छे से गो थ्रू करें. जैसे बायो में डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस में से कुछ भी पूछा जा सकता है. लाइक एक ईयर ऐसा हुआ था कि जो टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट लाइंस होती हैं उसमें नहीं था ये, लेकिन एक डायग्राम के नीचे लिखा हुआ था माइस्टोनिक डिस्ट्रोफी के बारे में और उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया था. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डायग्राम्स की लेबलिंग, उनके जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी इक्वली वेटेज दें. और जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ सिलेबस से ही पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना फोकस सिर्फ बायोलॉजी एनसीईआरटी पर ही रखें. ऐसा नहीं कि 10 बुक्स उठा लें और सारा आपके माइंड में मिक्सअप हो जाए. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करें. So now the next thing I would probably say that हमें diagrams पे भी काफी फोकस करना है, because अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, if we draw diagram then easily कि हमें हर किसी को भी 2 मार्क्स तो उसके फ्री के मिल जाएंगे एंड टीचर भी काफी सेटिस्फाई हो जाएगा
कि हाँ इसको यहाँ इन्हें आता है, जिन्हें कंप्लीट नॉलेज लिखे हैं, और टीचर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स नहीं काट पाएंगे वो लोग। द मेन थिंग इज दैट कि काफी काफी सारे बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं जस्ट बिकॉज कि वो लिख तो सब देते हैं बट दे कांट, पर वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं और डायग्राम्स में भी वो डायग्राम्स नहीं बनाते वो, सो उनको लगता है कि हाँ ही कंपेयर कि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है। तो इस वजह से डायग्राम मस्ट बी देयर, सो दैट इफ अगर किसी को कुछ ना भी आता हो कि जस्ट ही नोज सम काइंड ऑफ डायग्राम, ही कैन इजीली गेट्स डायग्राम एंड दैट स्कोर फ्रॉम डायग्राम। सो यहाँ पर काफी डायग्राम्स है जो कि मोस्ट कॉमन डायग्राम्स है, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव डायग्राम ऑफ फर्टिलाइजिंग ओवियम एज वेल एज मिलर्स एक्सपेरिमेंट। मिलर्स एक्सपेरिमेंट का ये काफी फेमस डायग्राम है कि हाँ ये आ सकता है। एंड द मेन थिंग ऑल्सो दैट कि जो डायग्राम्स की जो छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है या वो भी मस्ट है, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आ जाता है। एंड इट्स अ वेरी अगर ये काफी रिग्रेट होगा कि हाँ हमने इसको छोड़ दिया, हमने काश में पढ़ लेता, ये वो काफी बेकार है। और फिर उसके बाद एक डायग्राम यहाँ पर ये है एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। ये काफी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि डायग्राम्स को प्रॉपरली लेबल करना है, पेंसिल से बनाना है। द मेन थिंग इज दैट कि मेनी ऑफ स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में ये कर देते हैं कि वो पेन से डायग्राम बना देते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। बट द मेन थिंग इज दैट ऑलवेज कैरी अ प्रॉपर ज्योमेट्री बॉक्स विद पेंसिल, इरेजर्स एंड ऑल, जिससे कि कोई भी डायग्राम बनाओ मेक श्योर इट्स इन अ proper box and it should be well labeled and a description must be there. That's the point of making diagram, so that कि टीचर कहीं से भी नंबर ना काट पाए, as well as and give a short review about that कि हाँ description में कि हाँ ये डायग्राम है तो इसमें कि ये होता है वो होता है। That's it for the diagram side. So basically for 5 marks question, please draw a diagram. It would be probably a better thing to do so. बायोलॉजी एक पूरा थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर वेल वर्स्ड विद इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। जितनी भी डेफिनेशंस है, वन वर्ड है, डायग्राम्स हैं, ये सब आपको ऑन योर फिंगर टिप्स होने चाहिए। एंड सिंस बायो में आपको सारा थ्योरेटिकल लिखना होता है या डायग्राम्स ड्रॉ करने होते हैं, सो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर आपको सिलेबस ऑन टिप्स होगा तो आप वहाँ पर बहुत टाइम बचा सकते हैं। एंड ताकि आप एटलीस्ट जब आप पेपर लिख ले तो एक बार पूरा पेपर अपना रिवाइज कर सके एंड यू कैन गो ओवर योर मिस्टेक्स। एंड वन थिंग आई वुड सजेस्ट यू इज कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आप अटक जाते हैं तो उस वक्त के लिए उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। डोंट थिंक दैट जब तक मेरा ये क्वेश्चन होगा नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बिकॉज ऐसा करेंगे तो आपका पेपर ज्यादा छूट सकता है। इट्स बेटर टू लूज 1 mark rather than losing 10 marks. So one suggestion is you can use flashcards to remember and revise important definitions and diagram before the exam. आप अगर flashcards बनाएंगे, you can maybe go through at least 5 flashcards daily before sleeping and 5 flashcards सुबह उठकर, so that आपको लगेगा भी नहीं कि आपने इसके लिए स्पेशल टाइम निकाला and आपका जो मेन पार्ट है वो भी सारा कवर अप हो जाएगा। एंड प्लीज डोंट थिंक ऑफ स्किपिंग एनी डायग्राम। सारे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड फ्रैंकली बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है। जितना आप डायग्राम्स को अच्छे से करेंगे उतना आपका स्कोर बढ़ेगा, बिकॉज एवरी ईयर इफ यू सी द पैटर्न 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा डायग्राम से आते हैं। आइदर उनकी डिस्क्रिप्शन में से वन वर्ड आ जाएगा या कभी कभी डायरेक्टली जो डायग्राम्स बनाने को आते हैं दैट शुड बी लाइक अ बोनस क्वेश्चन फॉर यू, बिकॉज आपने 1 साल सिर्फ उन डायग्राम्स को ही प्रैक्टिस किया है, तो उसमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। So now come अब जब याद है कि 3 or 4 marks और मे बी इनफैक्ट 5 marks वाले, so हाँ हमें ये कि एग्जाम्पल और डिफरेंसेस ये मस्ट है, बिकॉज अगर हम एग्जाम्पल्स हम देंगे तो हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में देंगे ताकि इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट्स कन्वर्ट हो। फॉर अगर हम पैराग्राफ में लिखे तो लिटरेचर और बायोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज आई रिकमेंड कि हमेशा इसको हम टेबुलर फॉर्म में और एक डिफरेंसेस के फॉर्म में लिखो कि फॉर एग्जांपल लाइक सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, देयर आर पॉइंट्स कि हाँ इसमें ये होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें एग्जांपल्स जरूर देना है, बिकॉज एग्जांपल्स अगर नहीं दोगे तो फिर इट्स टोटली इनवैलिड रहेगा कि हाँ तुमने बता दिया पर एग्जांपल दिया नहीं, तो क्या फायदा हो उस चीज को बताने का। दैट्स द एग्जांपल, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
एंड मेन है कि 3 या 4 मार्क्स में कुछ डिफरेंस आ जाए तो उसको टेबुलर फॉर्म में बनाना है और उसके मैक्सिमम पॉइंट्स जितने कवर उसके वो कवर करना है। मेन ये कि हमें इसको पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना, मेन द थिंग इज, और इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। सेम गोज विद डिफरेंसेस एंड ऑल, कि वायरल में हमारे पास डिफरेंसेस एंड एग्जांपल्स। सो एग्जांपल्स में फॉर एग्जांपल लाइक बैक्टीरिया में निमोनिया टाइफाइड, अगर हम सिर्फ बैक्टीरिया लिख देंगे तो ये काफ़ी इनवैलिड पॉइंट रहेगा, बैक्टीरिया में से निमोनिया टाइफाइड। बट इसमें अगर हम एग्जांपल दे तो हाँ कि ये बैक्टीरियाज है, सो वी हैव कि हाँ ये बैक्टीरिया एंड वी नो अबाउट इट, दैट्स व्हाई एग्जांपल्स एंड डिफरेंसेस ये एक कोइंसाइड करेंगे, साथ ही चलेंगे, वरना इट वुड बी अ टोटली इनवैलिड पॉइंट। After you are well versed with biology, it is very important कि आप previous 8 या 10 या 15 years अच्छे से एक बार go through करें, because बहुत questions होते हैं जो every year repeat होते हैं, questions का part repeat होता है, या फिर जिस यूनिट में से क्वेश्चन आए उसी यूनिट में से मिलता जुलता क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर आ जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर अच्छे से करें। एंड सैम्पल पेपर्स बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द टाइप एंड पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस। जब आप सैम्पल पेपर्स करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तो यू विल गेट टू नो योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स। एंड अभी आपका पेपर पोस्टपोन हो गया है, तो मे बी अभी 1 महीने के लिए आप सारा सिलेबस अच्छे से एक बार कवर कर सकते हैं। आफ्टर दैट जब आपका एग्जाम पास आ रहा हो, तो यू हैव टू फोकस ओनली ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। लास्ट में कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना है, कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है, एंड यू डोंट हैव टू पैनिक कि मेरा ये टॉपिक छूट गया या ये छूट गया। जितना किया है उसको एकदम 100% करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारा एक बार अच्छे से रिवाइज करें। एंड अगर आपका प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी में फुल कॉन्फिडेंस है, उसके बाद ही यू आर रिकमेंडेड टू यूज टू द पॉइंट बायोलॉजी, जिसके अंदर काफी डिटेल में क्वेश्चंस होते हैं, एंड इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर नीट एस्पिरेंट। बट अगर आप बायोलॉजी में 100 on 100 का एम कर रहे हैं एंड आप एनसीईआरटी, आई रिपीट एनसीईआरटी से एकदम वेल वर्स्ड हैं, तभी आप ये बुक उठाइएगा, अदरवाइज खुद को कंफ्यूज करने का कोई फायदा नहीं है। ऑल्सो किसी भी पब्लिकेशंस के आप प्रीवियस ईयर यूज कर सकते हैं। नेट पे आप ढूंढेंगे तो वहां भी आपको प्रीवियस 10 years मिल जाएंगे। अनअकैडमी के फ्री कोर्सेज होते हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बस कि आप एक बार डेली 3 घंटे बैठकर अपना टाइम कंस्ट्रेंट सेट कर प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस कि आप कितनी देर में खत्म कर पाते हैं एंड कितनी एक्यूरेटली आंसर कर पाते हैं, जब आपके पास एक वो टाइम बैरियर है कि आपको 3 घंटे में ही आंसर करना है। बिकॉज ये बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो नो डाउट आपको सब कुछ याद होगा, बट द चैलेंजेस जब आपको 3 घंटे में वो सब अच्छे से जॉट डाउन करना होता है और नीटली रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप 3 घंटे वाले सैम्पल पेपर्स बैठ के घर पे मॉक टेस्ट जरूर दें। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से रखें। लाइक आफ्टर एवरी, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर पेपर ऑन टाइम, आफ्टर एवरी क्वेश्चन आप पेंसिल से लाइन मार सकते हैं, डायग्राम सिर्फ पेंसिल से बनाने हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन और लेबलिंग सब पेंसिल से रखनी है। एंड इफ यू आर डूइंग इट वेरी नीटली तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे आप लेबलिंग सिर्फ राइट साइड में रखें, इट गिव्स अ वेरी नीट रिप्रेजेंटेशन। एंड जब आप ऐसा पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो जो आपका पेपर चेक that yes, the child is very well versed with everything, वो इतना confidently और calmly answer कर पा रहा है। Thank you. That's all from our side. All the best to everyone. So in the end, I will probably say that biology is kind of very easy subject, बस इसके समझने के point of view से होता है। So everyone should, all the biology aspirants should relax, then they should give their paper with well versed and everything. Thank you. Now Mansi and Shruti can see the questions. Okay, someone is asking, is NCERT Exemplar a good book for board preparation? Yes, some NCERT Exemplar are very good for board preparations. Okay, Astha Sharma has asked that how can we manage time in the maths examination?
He has sent the message to me directly. So for maths examination, what I would like to suggest is कि पेपर ढंग से लगा लो पहले, मॉक टेस्ट वाले जितने होते हैं 10-15 अगर मॉक टेस्ट लगा रखे होंगे तो आराम से हो जाएगा। तो आपको अपना पैटर्न भी पता होना चाहिए। जब आप एक बार प्रैक्टिस करके जाते हो वहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन करते वक्त सोचना नहीं चाहिए कि मुझे ये एल्गोरिदम आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो थोड़ी देर के लिए आप उसको स्किप कर दीजिए, क्वेश्चन को फिर बाद में करना। तो डोंट बी लाइक कि हमें उसी वक्त करना है। प्रैक्टिस होगी तो आपको तुरंत देखते ही पता चल जाएगा कि आपको उस वक्त हो पाएगा कि नहीं। Yes, someone has asked, should we focus more on diagrams in bio or theory and mugging on? I would probably say that equivalent time देना पड़ेगा उसको, like bio and theory में, bio, theory and diagrams, because diagrams ये एक साथ चलते जाए, एक coincide करते हैं कि हाँ to get a full score पूरे 100 out of 100 में ये काफी ज़्यादा help करेंगे कि diagrams भी हो and as well as theory, but primarily focus should be on theory also, because theory consists each and every line of NCERT is very, very important. That's why I guess 60% more, 70% focus towards the theory part and 40% to diagram. शिफा पूछना चाह रही है that derivations important है फिजिक्स के लिए। हाँ शिफा, डेरिवेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ, इसके लिए, स्पेशली डेरिवेशन प्लस डायग्राम। उसके डायग्राम्स अगर डेरिवेशन के पॉसिबल है तो प्लीज बना लेना, छोड़ना मत। So Kumar Samyak has asked, from which year exactly should we start doing previous year? I mean, this is not previous year, this is mock exams, question papers. Actually from 2010 it would be काफी सही नहीं रहेगा कि लाइक हम वहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं। We should probably practice from 20 question papers past is from 2015, because earlier there used to be a very vast syllabus. That's why one should probably practice from 2015 or 2013. That would be better. And there's a question from Aryan, how should we practice mock papers, daily one or weekly? आर्यन, that depends totally on your preparation. अगर आपकी preparation अच्छी है तो आप daily एक mock paper attempt कीजिए, and if you think you still have something left to prepare तो आप week में at least एक paper जरूर attempt कीजिए। Survi is asking what we have to do if we have few days left for physics exam and we have not started studying numericals. See, don't panic. Just have faith on your theoretical part, and if you have done your theoretical part nicely, you can do the numericals, at least the basics ones, and you can also try the tough one. Means you can आप कर सकते हो, उतना टफ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते भी नहीं है। अगर आपके थ्योरी क्लियर है, आप सिर्फ थ्योरी आपने पढ़ा है तो बहुत है आपके लिए, आप न्यूमेरिकल्स भी कर लोगे। So I think that no more questions are there from the participants. I think you people have now get more time for your boards. Reason being, today only your 12th boards have been postponed. So what our suggestions are, don't stress yourself. You can follow 3 hour strategy daily, PCM, and
do stay in touch with your studies. Reason being, don't assume that class 12th board will be cancelled. All the entrance exams are based on boards. Like boards exams are considered later on also. Okay, so you have now more time to study. Don't do over study, but do stay in touch with your courses. And all, thanks for all the speakers who have devoted their so much of valuable time to help others. Professor Gupta, who has actually agreed to be part of this seminar or webinar. So thanks for all the participants who are here. We will be sharing the links of 20 sample papers in the email, and also the link of this video as a YouTube link. Okay, so you those who have missed can see from there. Over to Professor Sharad Gupta. So at the end, I must say that students had prepared very well, and they have shared their tips very well. For example, chemistry people have said that use practice previous year question papers. They have recommended books also, and they said NCERT अच्छे से करो, NCERT नहीं छोड़ना. Next, maths वाले ने बोला कि presentations matters, so put your graphs etc. properly, and then practice, and they also suggested कि LMH use करो, okay. And then they asked that analyze last year's question paper and do questions as per their weightage in past year question papers. Do not hesitate to take more papers. ये बहुत important है. कई बार हमें लगता है कि नहीं नहीं और पेपर क्यों ले लें, waste हो जाएगा. So don't think about it, okay, and you must relax. So similarly, physics वालों ने बोला कि topic wise strategy करो. Focus on numerical questions if you do not like theory. और NCERT के index questions करो अभी भी और बाद में भी, एग्जाम के पहले भी. और सारे चैप्टर के लिए नोट्स बनाओ. They have recommended some books also. They have asked you to design the study plan also, and they have said that 1 month before the exam, revise, recall and repeat. So that is very good thing. And then biology वालों ने बोला कि topic wise strategy अपनी बनाओ, सारी books पढ़ो, लेकिन NCERT को stick करो. Okay, so ये बहुत important है. See, at the end, you should not stress yourself. Okay, and try to do meditation. I have done certain experiments with meditation, where I have done meditation with one of the classes, and other class did not take the meditation. And I saw that after 2 months, what happened was that those who were meditating, they were more mindful. Okay, they could concentrate better, and their marks, the increase in their marks was significantly higher than the other group. मतलब मेडिटेशन अगर आप करते हो तो उससे आपके मार्क्स पे इंप्रूवमेंट पड़ता है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है. ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आप शुरू कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट सुबह से, और बाद में 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम दोनों टाइम कर सकते हो. बहुत सारे तरीके होते हैं मेडिटेशन के, कुछ भी देख सकते हो. अभी कुछ नहीं करते हो तो इफ यू डू एनीथिंग दैट विल हेल्प यू. ओके, and at the end now you have got some time, so use this time properly, and all the best for your 12th class board. Wish you all the best. Okay, bye bye. Thanks to all the participants, and thanks to all the experts, and big thanks to Professor N. Gupta, who actually coordinated the session.